નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એમાં જોવાનું છે ચેપ્ટર 8 રાજા કા હિસ્સા, એટલે કે રાજાનો હિસ્સો, રાજાનો ભાગ। તો આપણે પાઠની શરૂઆત પહેલાં શું જોવાનું છે? એમના શબ્દાર્થ। શું જોવાનું છે? શબ્દાર્થ, કે જેથી કરીને આપણને પાઠ સમજવામાં સહેલાઈ રહે। તો આપણે પહેલાં જોઈશું એમના શબ્દાર્થ। પ્રજાવત્સલ, પ્રજાવત્સલ તો આવશે પ્રજા પ્રેમી। એમના પછી સ્વયં, સ્વયં એટલે ખુદ। એમના પછી યથાસંભવ, તો યથાસંભવનું થશે જો સંભવ હૈ। भ्रमण, घूमना, अथवा तो हम क्या बोल सकते हैं? परिक्रमा। अत्याचार, तो अत्याचार में आवशे जुल्म। पुनः, तो पुनःनु थशे फिर से। दोबारा। थकावट, तो थकावटनु थशे थकना। कमजोर, तो कमजोर में आवशे निर्बल, अशक्त। दिक्कत, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, तो बाधा। परेशानी। तो आ हता आपणा शब्दार्थ। पहलू छे प्रजावत्सल एटले प्रजाप्रेमी, स्वयं खुद, यथासंभव जो संभव है वो, भ्रमण घूमना, अत्याचार जुल्म, पुनः फिर से यानी दोबारा, थकावट थकना, कमजोर निर्बल और अशक्य, दिक्कत तो दिक्कत एटले बाधा अने परेशानी। तो आ हता आपणा शब्दार्थ। हवे आपणे जोईशुं पाठनी प्रस्तावना के आ पाठ एना विषे छे, एमां शुं वस्तु जाणवानी छे एमना विषे आपणे प्रस्तावना जोईशुं। इस कहानी में एक प्रजावत्सल्य राजा का वर्णन है, कि आ कहानी अंदर, आ वार्तानी अंदर प्रजावत्सल्य एटले शुं थशे? प्रजावत्सल्य एटले प्रजाप्रेमी, के प्रजाने प्रेम करता होय प्रजावत्सल्य तेवा राजा विषे बात करवामां आवेली छे। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, कि राजा छे ए प्रजाने कोईपण कठिनाई कोई मुसीबत होय तो एमां एमनी मदद माटे हमेशा तत्पर एटले ऊभा ज रहेला होय छे। तो हवे आपणे जोईशुं पाठनी तरफ। राजा भोज बड़े ही प्रजावत्सल्य थे, कि राजा भोज छे ए खूब ज मोटा प्रजाप्रेमी हता। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें तथा संभव दूर क्रिया करते थे, कि ते एक मोटा राजा प्रेमी प्रजाप्रेमी हता ने ते पोते जाते स्वयं एटले पोते जाते ज ते पोतानी नगर में परिक्रमा करता घूमता हता, अने जे लोकोनी तकलीफ होय प्रजानी तकलीफो होय तेने सांभळता जोता अने बने त्यां सुधी एमनी ए कठिनाईओ ए मुसीबतथी ते एमने हल गोती आपता अथवा तो एने
જે વસ્તુ કાર્ય કરે છે એમાં એ સહેલાઈથી અને સરળતાથી કામ કરી શકે એવો પ્રજાની પ્રત્યે એવો વ્યવહાર અને એવી રીતે મદદ કરતા હતા કે સામેવાળી જેની પ્રજા છે સામેની પ્રજા છે એ પ્રજાને જે કામ કરવામાં કઠણાઈ પડે છે તો એ કઠણાઈને કઈ રીતે સહેલાઈમાં ફેરવવી એમના એ પ્રયત્નો કરતા રહેતા હતા। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे कि एक દિવસ રાજા પોતાની રાણી સાથે રાજ્યની ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા એટલે કે રાજ્ય ફરી રહ્યા હતા। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए કે પોતાની રાજધાની કે જો પોતાનું નગર છે પોતાનું રાજ્ય છે એનાથી ખૂબ દૂર જતા રહે। રાજધાની એટલે કે જ્યાં રાજા રહેતા હોય રાજાનો મહેલ હોય ત્યાંથી તે ખૂબ દૂર જતા રહ્યા હતા। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था કે એમણે જોયું કે એક કિસાન છે એ પોતાના ખેતરની અંદર હળ ચલાવી રહ્યો હતો। मगर उसके हल में एक ही बैल है પરંતુ નવાઈ શેની લાગી તો કે એના હળની અંદર એનો જે હળ હતો ચલાવતો હતો ખેડૂત એમાં એક જ બળદ હતો। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी કે બીજા બળદની જગ્યાએ એમની પત્ની જે ખેડૂતની પત્ની છે એ જ ત્યાં ઊભેલી હતી અને હળ ખેંચતી હતી। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा કે રાજા ભોજે એમનો આ રથ રોક્યો અને કિસાનની બાજુમાં જઈને એમણે કહ્યું, ભલે આદમી तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। રાજાએ શું કીધું કે અરે ભોળા આદમી તું આપ સ્ત્રી સાથે આવો અત્યાચાર શું કામ કરે છે। ભલા કहीं સ્ત્રી કો ભી હલ મેં જોતા જાતા હૈ કે ક્યારે એવું જોયું છે તે કે સ્ત્રી હળ ખેંચતી હોય એવું। મેરા તો હવે શું કહે છે ખેડૂત કે મેરા એક બેલ મર ગયા હે। રાજાએ એમને પૂછ્યું કે તું આ સ્ત્રી ઉપર આવો અત્યાચાર શું કામ કરે છે તે ક્યારે આવું જોયેલું છે કે સ્ત્રી હળ ચલાવતી હોય એમ અને બળદની સ્થાન ઉપર તે આવું કંઈ જોયું છે। તો હવે ખેડૂત એને જવાબ આપે છે કે મેરા એક બેલ મર ગયા હે કે મારો એક બળદ છે એ મરી ગયો છે। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है કે બીજો બળદ ખરીદવા માટે મારી પાસે પૈસા છે નહીં। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया કે જો હું આ હળ નહીં ચલાવું તો ખેતરની અંદરથી મને પાક મળવાનો નથી ને જો પાક નહીં મળે તો હું શું ખાશ। ને આવું કહીને રાજાને કોઈ ધ્યાન દેતું રાજા ઉપર કોઈ ધ્યાન દેતું નથી ખેડૂત અને પાછો પોતાના કામમાં લાગી જાય છે। उसे क्या पता था कि उसके बात करने वाला कौन है कि उससे बात करने वाला कौन है। ખેડૂતને એ નહોતી ખબર કે એ જેની સાથે વાત કરે છે એક રાજ્યનો રાજા છે એમને નહોતી ખબર કે આ આપણો રાજા છે। तो શું કહે છે કે उसको क्या पता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो कौन है। राजा ने कहा अरे भाई जरा सुनो तो એણે શું કીધું અરે ભાઈ તું સાંભળ તો ખરા મારી વાતને આમનામ કહીને તું તો ચાલતો પોતાનું કામ કરે છે तो भाई तुम्हारी बात तो सांभळ। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा किसाने शू कीधुं कि तमारे जे केवुं होय ते मारी साथे चालता चालता करो पण मारू काम तमे रोको नहीं। आवुं कोने कहे छे राजाने अने कोण कहे छे तो के किसान कहे छे કે તમારે જે પણ રાજા એમ કીધું કે તું મારી વાત તો સાંભળ તો કિસાને શું કીધું કે તમારે જે પણ કામ કરવું કેવું હોય જે પણ કાર્ય જે પણ વસ્તુ કેવી હોય તે મારી સાથે ચાલતા ચાલતા કહો તમે મારું કામ રોકો માં। राजा भोज उसके साथ चलते चलते लगे કે રાજા ભોજ उसके साथ साथ चलने लगे કે રાજા ભોજ છે એ પણ એમની સાથે ચાલવા લાગે છે। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए કે પોતાના કામથી એમને આટલો લગાવ હતો એ જોઈને રાજા ભોજ ખૂબ જ ખુશ થયા ખૂબ પ્રસન્ન થયા કે આ ખેડૂત છે એને પોતાના કામ પ્રત્યે કેટલો લગાવ છે। भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट के वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं करेगी। एने शुं कीधुं कि अरे भले आदमी भला आदमी तू आ करावे छो पण आनाथी तारी पत्नी तो ठाकी जशे अने आना कारणे
તે બીજું કામ પણ નહીં કરી શકે। કિસાન બોલા, તો ફિર તુમ હી બતાવો મેં ક્યાં કરું? તો કિસાને કીધું, તો હવે તો તમે જ કહો કે હું શું કરું? જો એમને હું અહીંયા બળદની સાથે ના રાખું તો હું શું કરું? રાજા ને કહા, तुम मेरे साथ चलो। एने शू कीधुं कि तू मारी साथे चाल। मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ। एने शू कीधुं कि हूँ मारो बळद छे ई तने आपूं छुं, तू मारी साथे चाल। मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ले आओ। किसान बोला, तो जो राजाए एम कीधुं कि तू मारी साथे हाल, हूँ तने मारो बळद आपूं छुं, तो किसाने शू कीधुं कि आटलो टाइम तो मारे मारुं काम रोकवुं पड़े, तो तमे ज जाओ अने तमे ज बळद लईने आवो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। एने शू कीधुं कि तो एवं कर कि तू तारी पत्नी ने मारो रथ ज्यां छे त्यां मोकली दे, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा कि राजाए शू कीधुं कि सारूं चालो, तारे के तारुं काम नथी रोकवुं, तो तू तारी पत्नी ने कहे कि ए मारा रथ पासे जाए अने त्यांथी बळद लईने आवे अने त्यां सुधी हूँ तारी पत्नी जग्याए रहूँ छूं। किसान इस बात पर राजी हो गया कि किसाने आ बात गमी एटले ए राजी थई गयो कि सारूं कई वांधो नहीं, तमे कहो एम। राजा बोझ हल में जूत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई कि राजा बोझ छे ए हळ चलावा लागे छे एटले कि खेंचवा लागे छे अने किसाननी पत्नी छे, खेडूतनी पत्नी ए क्या जाय छे? राजा बोझनी जे पत्नी छे रथ ज्यां छे एमनी पासे जाय छे। उसने रानी को सारी बात बता दी कि एने रानी ने सारी बात बतावी कि आवी रीते थयुं। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा। एने शू कीधुं? राणीए आखी बात सांभળી લીધી અને રાણીએ પછી શું કીધું કિસાનની પત્નીને કે તારો જે બળદ છે એ તો કમજોર હશે, वह हमारे बैल के साथ नहीं चलेगा। एने शू कीधुं कि तारो जे बळद छे ए कमजोर छे ने ते मारा बळदनी साथे नहीं चाली शके, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ के एना कारणे तू आ बंने ज बळदाओ लई जा, केम के तारो बळ हवे कमजोर थई गयो हशे अने ए मारा बळदानी साथे नहीं चाले, एना कारणे तू मारा आ बंने ज बळदा लई जा। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची कि किसाननी पत्नी छे ए बंने बळदाओ लईने खेतर पासे आवे छे। किसान बहुत प्रसन्न हो गया, खेडूत खूब ज प्रसन्न खुश थई गयो। राजा बोझ ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना है। राजा बोझ ने शू कीधुं कि अगर जो पण कोई पण समस्या होय तो तारे मारी पासे आववुं। कहकर राजा बोझ ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ कि आवुं कहीने राजा बोझे पोतानो परिचय आप्यो कि हूँ राजा बोझ छूं। तो किसान खेडूत आ सांभळीने खूब ज शर्मिल, एटले के एमने शरम लागी। केम शरम लागी? केम के एमने राजा बोझनी साथे केवो अन्याय कर्यो, केम के राजा बोझनी साथे पहला तो बात सरखी रीते बात ना करी, एमने चालता चालता बात करावी, सरखा आंसर जवाब न आप्या अने बीजुं मोटा मोटुं शुं कर्युं एने तो कि एने एक बळदनी जग्याए राजा बोझने ऊभा राखी दीधा अने आना कारणे खेडूतने खूब ज शरम आवी। तो बहुत ही शर्मिंदा हुआ, एमने खूब ज शरम आवी। उसने राजा बोझ से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि एने राजा बोझनी पासेथी क्षमा मांगी कि मैं आ जे कर्युं ए तमारी साथे खोटुं कर्युं, मने खबर नहोती कि तमे राजा छो। राजा प्रसन्न होकर वापस चल गए कि राजा छे ए खूब प्रसन्न थया अने त्यांथी पाछा जता रहे छे। इसी बार इस किसान ने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई कि आ वखते खेडूतना खेतरमां खूब ज सारुं एवुं उत्पादन थयुं। उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि एमने पोताने एटली नवाई लागी, पोताने एटलो आश्चर्य थयो, नवाई लागी कि एने कोई सीमा ज ना रही। देखा कि खेत के जितने हिस्से में जो राजा बोझ ने जोता था उसमें मोती उगे हैं। एने शू जोयुं कि खेतरना एटला हिस्सामां ए जोयुं कि खेतरना एटला हिस्सामां ज्यां राजा बोझे बळदनी जग्याए लईने जे हळ चलाव्युं हतुं एटलामां शुं उग्युं हतुं? मोती उग्या हता। बाकी के हिस्से में अपना किस्म के गेहूँ उगे थे। अदमा किस्मत एटले कि अद्भुत, एटले कि खूब ज मोटा प्रमाण में गेहूँ एटले घऊँ उग्या हता।
किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान खूब ज खुश થઈ ગયો। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। कि किसाने खेडूते आ सारा मोती बधा मोती हता ए बधा मोती लीधा, भेगा कर्या अने क्या जाय छे? राजा पासे जाय छे। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया कि एने आ बधा ज मोती राजा पासे लई जाय छे अने राजाने आ किस्सो संभळावे छे कि तमे जे जग्या उपर हळ चलाव्युं हतुं त्यां मोती उग्या छे अने बाकीनी बधी जग्या उपर घઉં उग्या छे। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसे पर तुम्हारा हक है। राजा भोजे शू कीधुं कि आ मोती भले हाँ हळ में चलाव्युं त्यां मोती उग्या ए वात बधी बराबर छे, परंतु खेतर तारुं हतुं तो आना उपर हक पण कोनो थयो? तारो ज थयो। इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो कि आ मोती तारा छे अने तारो अधिकार छे, ले हवे तू आ मोती तू ज राख। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। एने शुं कीधुं कि नहीं महाराज, आ तमारा परिश्रम, आ तमारी मेहनत छे, तो एमने हूँ राखी सकूँ नहीं, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले सकूँगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम ले ले। तो मारी एवी इच्छा है। खेडूत शुं कहे छे कि हाँ भले खेतर मारुं हतुं परंतु एमना उपर मेहनत तमे करेली हती एटले एनो हक पण तमारो ज थयो, एटले तमे लई लो अथवा तो मारी एवी इच्छा है कि आने तमे राजकोषमां એટલે કે राजभंडारमां राखी दो अने जे गरीबने जरूर छे एमने तमे आपो। किसान ने प्रार्थना की, कृष्ण ने विनंती करी कि तमे मारी एवी इच्छा है तमे आवुं करो, विनंती करी। राजा किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। कि राजा आनी बात सांभळीने खूब ज प्रसन्न थया अने राजाए एमनी बात सांभળી लीधी। तो हवे पछी आपणे जोवाना छे सवाल जवाब। शुं जोवानुं छे? तो के सवाल जवाब। पण सवाल जवाब पहला आपणे ज्यारे पाठनी शरूआत करीए छे तो पाठनुं नवा पेजे पाठनी शरूआत करवानी छे। नवा पेजे पाठनुं हेडिंग मारीने सौप्रथम शुं लखवानुं छे? शब्दार्थ। शुं लखवानुं छे? शब्दार्थ। हवे एमना पछी आपणे लखवाना छे विकल्पो अने एना पछी आवशे खाली जग्या। तो विकल्पोमां तमने होमवर्क शीटनी अंदर विकल्पोना सवाल आपी दीधा छे अने हवे तमारे विडियोमांथी एमना शुं लखवाना रहेशे? जवाब। तो पहलो विकल्प छे राजा बोस किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो के शुं आवशे? प्रश्न 1 निम्नलिखित विकल्पों के उत्तर लिखिए। के नीचे आपेला विकल्पोना जवाब लखो। तो राजा बोझ किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो आवशे रथ पर। शुं आवशे? रथ पर। खेत किसने जोता था? हल से। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? कि पोताना काम प्रति किसान की केवी भावनाओं हती? उपेक्षा। खेत में मोती की फसल देखकर किसान को क्या हुआ? आश्चर्य। केमने नवाई लागी। एमना पछी आपणे जोवानो छे प्रश्न 2 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे आपेला खाली जग्याओं पूरो। एक दिन राजा भोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे।
તો શું આવશે? ભ્રમણ. કે એક દિવસ રાજા બોજ રાજ્યનું ભ્રમણ કરવા માટે નીકળ્યા હતા. मगर इतनी देर मुझे अपना खाली जगह रोकना पड़ेगा. काम कि इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा. अगर कभी कोई खाली जगह हो तो मेरे पास आना. दिक्कत. बाकी के हिस्से में खाली जगह किस्म के गेहूँ उगे थे. उम्दा. किसान के सारे मोती राजा की खाली जगह में रख दिए. चरणों में. शेमा आवशे? चरणों में. फरी एक वखत विकल्पों खाली जगह बोली जाऊँ छूँ. राजा बोज किस पर सवार होकर राज्य के भ्रमण कर रहे थे. तो शेना ऊपर आवशे? रथ पर. खेत किससे जोता जाता है? हल से. अपने काम के प्रति किसान ने कैसी भावना थी? तो के अपेक्षा. खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ. आश्चर्य. हवे आपणे जोईशुं खाली जग्या. एक दिन राजा बोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे. तो शू आवशे? भ्रमण. मगर इतनी देर मुझे अपना खाली जगह रोकना पड़ेगा. काम. अगर कभी भी कोई खाली जगह हो तो मेरे पास आना. दिक्कत. बाकी के हिस्से में खाली जगह किस्म के गेहूँ उगे थे. तो शू आवशे? उम्दा. किसान ने सारे मोती राजा के खाली जगह में रख दिए. तो शू आवशे? चरणों में. तो आ हतो आपणा पाठनो पहलो टॉपिक. एमनी अंदर शरूआतमां तमारे शब्दार्थ लखवाना छे, एमना पछी विकल्पो अने त्यार पछी खाली जग्या. तो विकल्पों ने खाली जग्या तमारे आवी रीते लखवानी नथी. पहला शुं लखवानुं छे? होमवर्क शीटनी अंदर तमारे सवाल आवेला हशे तो पहला सवाल ने एनी सामे नीचे जवाब. सवाल जवाब, सवाल जवाब एवी रीते व्यवस्थित सारा अक्षरे तमारे पाकी बुकमां लखवानुं रहेशे. स्क्रीन पर राखुं छुं, तमे आनो स्क्रीनशॉट लई शको छो. थैंक यू.